Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. This is our workbook of English. Open it and open your page number 55. Okay students, this is our page number 55, lesson number 11, more than an artist, and our first activity is vocabulary. Activity A, fill in the blanks with yun or shun to forms noun. Students, as we already read that shun and yun are the suffixes that comes at the end of the word. So let's complete our words with the help of these suffixes. Number 1, decision. DECISION, decision. फैसला. OCCASION, occasion. मौका. INVITATION, invitation, दावत. Number 4, vacation. Number 4, vacation. VACATION, vacation, छुट्टियाँ. Number 5, expression. EXPRESSION, expression. Number 6, conclusion. CONCLUSION, conclusion. Number 7, direction. DIRECTION, direction, simt. Number 8, QUESTION, question, सवाल. Number 9, ADMISSION, so ADMISSION, admission, दाखला. So these are our suffixes. Now come to the next activity. Activity B, fill in the blanks with the correct words from above. We have to fill these blanks. We have to fill the blanks. We have to fill the blanks with the help of these suffixes and these suffixes words. We have to fill these blanks. We have to fill the blanks with these words. So let's start. Number 1, all the runners are running in the same dash. तमाम भागने वाले एक ही तरफ भाग रहे हैं. So तरफ, what we will write here? Let's choose in the above sentences. Yes, here we will write direction. सिमत, तमाम भागने वाले एक ही सिमत में यानी एक ही तरफ भाग रहे हैं. Number 2, I had to pay an dash fee in order to get into the park. मैंने पार्क में दाखिले के लिए एक फीस जमा करवाई है. So what we will write here? Admission, दाखला. मैंने पार्क में दाखिले के लिए फ़ीस जमा करवाई है. Number 3, I received an dash to Mary's birthday party. मैंने मैरी की सालगिरह के लिए डैश हासिल किया. So हमने मैरी की सालगिरह के लिए क्या हासिल किया? इनविटेशन, दावतनामा हासिल किया. Number 4, I would like to go to Italy for a dash. मैं डैश पर इटली जाना पसंद करूँगा या इटली जाना चाहूँगा. स्टूडेंट्स, हम छुट्टियों पर जाते हैं ना कहीं पर सैर करने के लिए. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओके, यस, हम यहाँ वैकेशन लिखेंगे. वैकेशन, छुट्टियाँ. Number 5, मदर्स डे इज़ अ स्पेशल डैश फॉर ऑल मदर्स. माँओं का दिन तमाम माँओं के लिए बहुत ख़ास डैश है. सो तमाम माँओं के लिए मदर्स डे क्या है? बहुत स्पेशल ओकेजन है, यानी बहुत ख़ास मौका होता है. ओकेजन, मौका. Number 6, the dash on dad's face told us that he was mad at us. अब्बू के चेहरे के डैश ने हमें बताया कि वो हम पर थोड़ा नाराज़ थे. सो हमारे अब्बू के चेहरे के क्या हमें बताते थे? एक्सप्रेशन, तासुर. अब्बू के चेहरे के तासुर ने हमें बताया कि वो थोड़ा नाराज़ थे. Number 7, the dash of the story was quite surprising. उस कहानी का डैश बहुत ज़्यादा हैरानकुन था. जी, कंक्लूजन, नतीजा. उस कहानी का नतीजा बहुत हैरानकुन था. Number 8,
प्लीज़ आंसर माई डैश, मेरे डैश का जवाब दो। तो स्टूडेंट्स, हम जवाब किसका देते हैं? डेफिनेटली हम जवाब किसी सवाल का देते हैं ना। सो हेयर वी विल राइट क्वेश्चन, सवाल, मेरे सवाल का जवाब दो। नंबर 9, Kim and Lisa discussed for a while and made the dash to donate their old books to the children's home. Kim and Lisa discussed for a while, Kim और Lisa ने कुछ देर बहस की and made the decision और फैसला किया to donate, खैरात करने का, their old books, उनकी पुरानी किताबों का, to the children's home, बच्चों के घरों में। So now come to the next activity at next page, page number 56. Our next activity is grammar. An adverbial clause of time. Adverbial clause of time tells us, हमें बताते हैं about when the action in the main clause happened, कि काम main clause में कब किया गया। It usually begins with the connectors. ये connector से शुरू होते हैं, of time, time के connector से, such as जैसे कि after, before, when, just as और as soon as. Activity A. Underline the adverbial clause of time in the sentences. इन जुमलों में adverbial clause of time को underline करें। Number 1. As we were driving down the road, जैसे ही हम सड़क से नीचे ड्राइविंग कर रहे थे, we saw, हमने देखा Mrs. Hubbard को। So here as is the connector and as we were driving down the road is the adverbial clause of time, जैसे ही हम सड़क से नीचे ड्राइविंग कर रहे थे। Daphne was panting hard after running for 10 minutes. Daphne 10 मिनट भागने के बाद सख्त तरीके से या बुरे तरीके से सांस ले रहा था। Panting hard, जोर से सांस लेना। Here after running for 10 minutes is adverbial clause of time, 10 मिनट भागने के बाद। Number 3, we need to pay attention when the teacher is talking. हमें तवज्जो देनी चाहिए जब टीचर बात कर रही होती हैं। So here when the teacher is talking is adverbial clause of time. Number 4, as soon as it stopped raining, जैसे ही बारिश रुकी, we left the concert hall, हमने concert hall छोड़ दिया। concert hall एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बड़े बड़े सिंगर्स आकर गाना गाते हैं। Number 5, one should not jump to conclusion. jump यानी छलांग लगाना, conclusions यानी नतीजे। before listening to all parties, तमाम बातों को सुनने से पहले, किसी को भी तमाम बातें सुनने से पहले नतीजे पर छलांग नहीं लगानी चाहिए, यानी डायरेक्ट नतीजे पर या मॉरल पर, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, पहले पूरी तरीके से पूरी बात सुननी चाहिए। सो हेयर बिफोर लिसनिंग टू ऑल पार्टीज इज एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। नंबर 6, द नॉटी चिल्ड्रन रैन अवे जस्ट एज द प्रिंसिपल अराइव्ड। शरारती बच्चे भाग गए जैसे ही प्रिंसिपल आई या प्रिंसिपल पहुँचे, अराइव्ड पहुँचना, आना। सो जस्ट एज द प्रिंसिपल अराइव्ड इज adverbial clause of time. Now come to the next activity, students. Activity B, complete the following sentences with the adverbial clauses of time from the box. इन जुमलों को adverbial clause of time से मुकम्मल करें, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को adverbial clause of time के साथ मुकम्मल करें। After scolding the children for 5 minutes, बच्चों को 5 मिनट के लिए झिड़कने के बाद, as soon as the threats of the earthquake was over, जैसे ही ज़लज़ले के झटके ख़त्म हुए, just as we were about to pack our school bags, जैसे ही हमने अपने स्कूल के बस्तों को बांध लिया या पैक किया, when we got there, जब हम वहाँ पहुँचे। Number 1, the supermarket was already closed when we got there. सुपरमार्केट पहले ही बंद हो चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे। Number 2, as soon as the threats of the earthquake were over, जैसे ही ज़लज़ले के झटके ख़त्म हुए, the people returned to their hometown,
लोग अपने घरों को लौट गए। नंबर 3, ही फाइनली काम डाउन, वो आखिरकार खामोश हो गया। काम डाउन खामोश हो जाना, ठंडा हो जाना। आफ्टर स्कॉल्डिंग, झिड़कने के बाद, द चिल्ड्रन फॉर 5 मिनट्स, बच्चों को 5 मिनट के लिए। ही फाइनली काम डाउन आफ्टर स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रन फॉर 5 मिनट्स, वो आखिरकार बच्चों को 5 मिनट झिड़कने के बाद ठंडा हो गया। नंबर 4, जस्ट एज वी वर अबाउट टू पैक आवर स्कूल बैग्स, बस जैसे ही हमने अपने स्कूल के बस्तों को बांध लिया, पैक कर लिया, द फायर अलार्म वेंट ऑफ, आग का अलार्म बंद हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। दिस इज आवर पेज नंबर 57. An adverbial clause of time can also begin with the connector. Adverbial clause of time भी connector से शुरू हो सकता है। That tells us, जो हमें बताता है, for how long कि कितना लंबा, such as long as, since, until and while, और how often कि कितनी दफ़ा, such as whenever and every time। यानी how long में as long as, since, until और while जैसे लफ्ज़ शामिल हैं, और how often में whenever और every time वर्ड्स शामिल हैं। एक्टिविटी ए, fill in the blanks with as long as, since, until, while, whenever और every time। दी गई खाली जगहों को इन लफ्ज़ों की मदद से पूरा करना है। लफ्ज़ हैं as long as, since, until, while, whenever और every time। नंबर 1, the babysitter did not leave the house dash my parents came home। बच्चों की आया ने तब तक घर नहीं छोड़ा जब तक मेरे वालिदैन घर नहीं आ गए। सो हेयर वी विल राइट until, जब तक। बच्चों की आया ने उस वक्त तक घर नहीं छोड़ा जब तक मेरे वालिदैन घर नहीं आ गए। नंबर 2, माई ग्रैंड पेरेंट्स मेट डैश दे वर स्टडिंग इन जापान। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स नाना नानी या दादा दादी। मेरे नाना नानी या दादा दादी मिले जब वो जापान में पढ़ाई कर रहे थे। सो हेयर वी विल यूज़ while, जब। नंबर 3, ही विल नॉट लीव द कंपनी, वो कंपनी नहीं छोड़ेगा डैश दे रिक्वायर हिज सर्विस, जब तक उन्हें उसके काम की ज़रूरत है। सो हेयर वी राइट as long as जब तक के उन्हें उसके काम की ज़रूरत है। नंबर 4, she has been able to sing beautifully, वो बहुत खूबसूरती से गाना गा सकती है या गाना गाने की काबिलियत रखती है। डैश she was 5, जब से वो 5 साल की थी। सो here we use since, जब से वो she was 5 साल की थी। नंबर 5, we collect seashells dash we are at the beach, हम समुद्री झींगे इकट्ठे करते हैं जब हम बीच पर होते हैं। बीच मीन्स समुंदर का किनारा। Here we use whenever, जब कभी या जब भी हम समुंदर पर होते हैं। नंबर 6, डैश जुलिया goes to the beach, जुलिया बीच पर जाती है। शी बिल्ड्स अ सैंड कैसल, और वो रेत से टीला बनाती है। सैंड कैसल रेत का टीला या रेत से महल वगैरह बनाना। एवरी टाइम जुलिया गोज़ टू द बीच, हर बार जब जुलिया बीच पर जाती है तो वो सैंड कैसल बनाती है। एक्टिविटी बी, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर ऑफ टाइम इन द ब्रैकेट्स। नंबर 1, Jess did not stop crying, her mother arrived, ब्रैकेट until, ब्रैकेट क्लॉज। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं और ब्रैकेट में कनेक्टर है। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को इन कनेक्टर की मदद से एक बनाना है। हमने इन कनेक्टर से इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। सो वी विल राइट लाइक दिस, Jess did not stop crying until her mother arrived. Jess
तब तक रोना बंद नहीं किया जब तक उसकी अम्मी नहीं पहुंच गईं। सो यहाँ पर हमने फुल स्टॉप को ख़त्म करके कनेक्टर को यूज़ किया है एंड कनेक्टर इज़ until। एंड द नेक्स्ट वर्ड जाहिर है जब हमने फुल स्टॉप ख़त्म कर दिया तो कनेक्टर यूज़ किया until, और कनेक्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हर का एच वो हमारा स्मॉल आएगा। सो हमने यहाँ पे स्मॉल एच यूज़ किया और लास्ट पे फुल स्टॉप लगा दिया। नंबर 2, वी विजिट अंकल बेन। हम अंकल बेन का दौरा करते हैं, यानी उन्हें देखने जाते हैं या मिलने जाते हैं। वी आर इन मलेशिया, जब हम मलेशिया में होते हैं। एवरी टाइम, हर बार। वी विजिट अंकल बेन एवरी टाइम वी आर इन मलेशिया। हम अंकल बेन का दौरा करने जाते हैं या उन्हें मिलने जाते हैं हर बार जब हम मलेशिया में होते हैं। नेक्स्ट इज वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। द प्लेन हैड टेकन ऑफ, जहाज़ उड़ चुका था। बाय द टाइम, यहाँ पर हम टाइम का बताएंगे। सो बाय द टाइम, जिस वक़्त वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर पहुँचे। द प्लेन हैड टेकन ऑफ, जहाज़ उड़ चुका था। तो स्टूडेंट्स, these were our today's activities. Please note down it and learn these spellings. Take care to yourself. Allah Hafiz.